same need, hunger, right? Hunger was just taking one example, hunger. हंगर को फुलफिल करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, सपोज राइस. अब आई वॉज एक्सपोज टू व्हीट. somebody came from some place over the time 2 month 3 month 4 month में कभी चल के आया, हो ही रहा है, कम्यूट किया. he reached to my place and he gave me his product, whatever he is at their place as his place used to eat. He give me that wheat and that place is competent, that place has core competency of growing wheat. My core competency is of growing rice. Okay. Are you understanding properly? So I was feeding myself with the rice only. When I was exposed to dal or wheat, I found it very tasty, right? So I now wish to get wheat also and dal also, but I could not produce rice, wheat or dal, right? For your core competency, my competency is rice only. If I try to produce wheat or dal, I will not be able to produce as much quality as they can produce, right? So what I did, I exchanged barter system, right? That time currency was also not there. Now can you imagine situation, production concept? That is why it is told that this is one of the oldest concept of marketing. Marketing is what? To fulfill the needs and wants. And exchange. That's it. As per Philip Kotler. So those who were having wheat, core competency in producing wheat, they were producing wheat in abundance, and those who were having competency in producing rice or dal or like oils and all, they were producing their product abundantly for your core competency again, and they all now were exchanging. During the course of time, they got exposure of other products to feed their hunger need, and they all now started exchanging to a better satisfaction level. That's what hunger is anyway get fulfilled by any one product. But if I get some mixture of foods like full plate, rice, dal, oil, some vegetable, my satisfaction level will be elevated, right? I'll be better satisfied. This satisfaction word is the core of marketing. And this satisfaction word is just not the realistic word. It's an imaginary word. Because nobody, are you satisfied? He is sitting in AC room, he is not satisfied. This is our human mind. So, production concept was concerned with the availability of the product, right? Availability of the product. Ready? I think now you all are clear. Crystal clear? Because that time availability was a big issue. When availability became common, transportation started. Somehow they were transporting all these things, yes or no? So transportation got started. They all were started. They all got started getting everything, right? Time changed, right? Again, those who were sending wheat started sending good quality wheat. Different qualities of wheat started getting sent. We got exposure to different quality of rice, different quality of wheat. So our intent is what? To get a better product, to get better satisfaction, right? So what happened? Those who were having better quality product, right? Those who were having better quality product got better demand, right? उनके पास डिमांड ज्यादा आने लगा. जिसके पास क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट खराब था, है ना, समझ में आ रहा है बात प्रॉपरली, कम डिमांड उसका होने लगा. ये तो जो प्रोडक्ट कंसेप्ट था वो
क्वालिटी को एम्फेसाइज करना बंद करने लगा। अभी हमको अवेलेबल हो गया तो हमको अच्छा क्वालिटी चाहिए भाई, इससे प्रोडक्ट इवॉल्व हो रहे हैं। अब हमको क्वालिटी की तरफ आने लगे हम लोग, तो क्वालिटी की तरफ आने लगे तो व्हाट हैपेंड, दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग इन द प्रोडक्शन कंसेप्ट में क्या है, वाइडली अवेलेबल, द प्रोडक्ट विच इज वाइडली अवेलेबल, इसीलिए कहा गया जो ज्यादा अवेलेबल होगा, जिसका लो कॉस्ट होगा और जिसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन का जिसका कैपेसिटी हो। आज भी हम बोल रहे हैं, आई एम टेलिंग टुडे आल्सो, आज भी बहुत सारे कंपनी 3 और 4 कॉम्पिटेंसी से जुड़ा हुआ है। कुछ एक जगह का 4 कॉम्पिटेंसी है तो है। अब अगर चाइना बैटरी बढ़िया बना सकती है ज्यादा मास स्केल में, चाइना का 4 कॉम्पिटेंसी है मास प्रोडक्शन, और मास प्रोडक्शन जब भी तुम करोगे तुम्हारा लो कॉस्ट होगा। लो कॉस्ट होगा क्योंकि मास से बना रहे हो, स्केल में बना रहे हो, तो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लो होगा पर यूनिट। नाउ व्हाट ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगा, ऑब्वियसली इंप्रूव होगा। तो ये था अवेलेबिलिटी, ये कंसेप्ट आज ये बोले आज भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस प्रोडक्शन कंसेप्ट को अडॉप्ट कर रही है एंड दे आर गेटिंग बेनिफिटेड। तो कोर कॉम्पिटेंसी इंडिया का स्किल लेवल हम बात करें, हर कंट्री का अपना कुछ कोर कॉम्पिटेंसी है, हर मार्केटर का अपना कुछ कोर कॉम्पिटेंसी है। गूगल एफएमसीजी में नहीं आ सकता, गूगल एफएमसीजी में आ सकता है, नहीं आ सकता। कोर कॉम्पिटेंसी कोई आईटी फर्म खोल लेगा, he will start but he will not excel, right? एक्सेल कर पाएगा हिंदुस्तान लेवल क्योंकि वो एफएमसीजी में बेस्ट है, उसका कोर कॉम्पिटेंसी है उसका। That was the concept of production concept. Then came the then came the product concept. Product concept, what it says, those products, this concept holds that the consumers will favor. अब मिलने लगा तो हमको बढ़िया चाहिए भाई, अब ये तो हमारा माइंड यही कहता है ना। तो देखो बहुत सारा कॉलेजेस में ऐसा क्लासरूम नहीं है। हम एमईटी आईएम्स की बात करें, हम एक्सेल आरआई गए हैं, एक्सेल आरआई में भी ये लेवल का हमको नहीं मिलता है क्लास, अच्छा क्लास एमईटी एमआरटी है सब पूरी राइट। तो ये हमारा माइंड है एंड आई एम नॉट सरप्राइज्ड यू आर अगेन सेइंग कि नो सर ऐसी नहीं काम। आई नो ये माइंड है, हमको जब मिलने लगा तो हमको बेस्ट क्वालिटी चाहिए, यही है। दिस कंसेप्ट होल्ड्स दैट द क्वालिटी परफॉर्मेंस इनोवेटिव फीचर जिसमें ज्यादा अच्छा होगा वो ज्यादा बिकेगा। प्रोडक्ट कंसेप्ट आया है ना। देन केम up in this concept of marketing, what was the drawback was that कि I have better quality। हम गोविंद भोग चावल बना रहे हैं भैया, तुम कतरनी बना रहे हो, बहुत सारा बना रहे हो, बहुत सारा चावल है, तुम्हारा लो क्वालिटी प्रोडक्ट है, कस्टमर गोविंद भोग की तरफ आ रहा है ना। तो I got more affiliated or affection with my product rather than customer। भैया मेरा प्रोडक्ट तो कस्टमर ना खरीदेगा, I should love my customer first, customer is the king। What I did, I started loving myself on। तो what happened, दूसरा कंपनी भी वो बनाने लग गया, भी ले सकते हैं, कस्टमर तो किंग है, वो तो कहीं भी जा सकता है। के प्रॉब्लम ये हो गया कि जो मार्केटर्स हैं वो अपने प्रोडक्ट से ज्यादा प्रेम करने लगा और इस चक्कर में वो कस्टमर के नीड्स एंड वांट्स को ध्यान, इससे क्या हुआ, अब इसमें क्या हुआ कि प्रोडक्ट ज्यादा नहीं दिखने लगा, राइट। ये कोई कहता है भैया तुम अपने घर में ही रहो, हमको जितना जरूरत होगा, हम मजबूरी होगा तो हम खरीदेंगे ही तुमसे, समझ में आ रहा है ना। कोई इनोवेट होता है सप्लायर, मोनोपोली है उसका, तो मोनोपोली है तो अभी तुमको मतलब बहुत जरूरत है मजबूरी में, लेकिन क्या तुम बहुत यूज करेगा, तुमको मालूम है कि यू नो कि इसके बिना मेरा काम नहीं चल रहा है, तो हम तो लेंगे ही, मजबूरी है मेरा, लेकिन क्या हम उतना सेटिस्फाइड होंगे। एक साइकिल ही है, हमको भगवान ने एक सोचने का, गुड फील गुड करने का भी एक दिया है, फील
फील गुड बाय दिस परचेज, और वही सबसे बड़ा मैटर है। तो भाई इसमें क्या हो गया, कस्टमर उतना ही खरीदने लगा जितना को उसको जरूरत थी। आ रहा बात समझ में? अगर डिमांड है, मेरा प्रोडक्शन है, अगर मान लो प्रोडक्शन और सप्लाई और प्रोडक्शन का इसमें गैप होने लगा, सप्लाई अगर डिमांड अगर है 10 टन का, डिमांड 10 टन का है और सप्लाई 100 टन का, प्रोडक्शन 100 टन का, तो 100 टन बढ़िया क्वालिटी प्रोडक्ट बना के बैठा हुआ है, लेकिन कस्टमर बोला मेरा काम चल जा रहा है 100 टन। तो क्या हुआ भाई, अब जो हम वो एग्जांपल दे रहे थे, क्योंकि वो पायनियर है, उसको मालूम है कि हम कहाँ गलती किए, वो पकड़ लिया। अभी वो क्या रहा है, दूसरे तीसरे से प्रोडक्ट खरीद लिया, वही जो मैग्नास एग्जांपल दे रहे थे। अब वो डोर टू डोर सेलिंग करना शुरू कर, यही बोलते हैं सेलिंग कंसेप्ट में। दिस कंसेप्ट होल्ड्स दैट the consumers and business, if left alone, they will not buy enough of the organizational products. The organization therefore should undertake aggressive selling and promotional. सेलिंग कंसेप्ट था, इसमें था कि अब यहां से आपको भैया प्रमोशन करना पड़ेगा, है ना, खाली अवेलेबल कराने से अब काम नहीं चलेगा, आपको बताना होगा कि आपके प्रोडक्ट में क्या बेस्ट है। आप नाइकी बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अभी आ गया है कैंपस और स्पार्क्स भी, आपको बताना होगा क्यों उस कस्टमर को नाइकी और रिबॉक और एडिडास ही खरीदना चाहिए, क्यों कैंपस नहीं खरीदना चाहिए, क्यों स्पार्क्स नहीं करना चाहिए। Until and unless you satisfy his need, उसको लगेगा भैया मेरे को 700 में तो उसके बाद प्रमोशन का इंपॉर्टेंस बोला था ना, प्रमोशन इज सेलिंग, इज प्रमोटिंग द प्रोडक्ट, ये तो है ही, दिस इज पार्ट ऑफ इट। कैसे ही बहुत बोल रहा है, समझ रहे हैं आगे बात, हम लोग एंशिएंट टाइम से आगे बढ़ रहे हैं, ये 1950s का हम बात, ठीक है। धीरे धीरे प्रमोशन कंसेप्ट भी चलने लगा। ये तुम प्रोडक्ट अपने मन से कुछ बना लिया अभी, ठीक है, तुम प्रोडक्ट कुछ अपने मन से बना लिया और आप उसको बहुत प्रमोट कर रहा है, खरीदे कैसे? आप बोल रहे हैं बहुत अच्छा प्रोडक्ट, लेकिन हमको समझ रहा बात, हमको जितना जरूरत था उतना वॉल्यूशन, समझ रहा नहीं वॉल्यूशन। अब बात आई कि आगे कैसे बढ़ा जाए, हाउ टू ग्रैब द कस्टमर्स मोर एंड मोर। अभी आया हॉरिजॉन्टल पेनिट्रेशन और वर्टिकल इंटीग्रेशन। हॉरिजॉन्टल मतलब ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को रीच करना, उसको एक्वायर करना, समझ गया ना, ज्यादा नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ाना, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। और वर्टिकल इंटीग्रेशन मतलब एक कस्टमर से ज्यादा हम लोग कैसे कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू बढ़ाएं, एक कस्टमर से ज्यादा प्रॉफिट कैसे, मतलब उसको साबुन भी बेच दे रहे हैं, उसको तेल भी बेच देना, उसको आटा भी दे देना, उसको गेहूं भी दे देना, उसको चावल भी दे देना है। एक कस्टमर से मेरा बढ़ा, रिटर्न इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। अगर एक कस्टमर का कन्विंस है तो उसका हम कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू बढ़ गया। पहले हम सिर्फ साबुन से हमको प्रॉफिट हो रहा था, कम वैल्यू आ रहा था। अभी क्या किया, जो साबुन से कन्विंस है, एलजी है ना, एलजी क्या आता है, माइक्रोवेव भी आता है, एसी भी आता है, उसका वॉशिंग मशीन भी आता है, रेफ्रिजरेटर भी आता है। क्या हुआ, वर्टिकल इंटीग्रेशन होते हैं, वर्टिकल इंटीग्रेशन हो गया। भी मेरे को जानना है कि अभी और क्या चाहिए कस्टमर को, है ना, कस्टमर को क्या चाहिए। हम तो बहुत प्रमोट कर रहे हैं, मेरा ग्रोथ नहीं आ रहा है। Then came the concept of marketing, right? Then came the concept of marketing. Just समझ लो, हम लोग नोट्स भेज देंगे ये वाला पीपीटी आज का, है ना, इसको लिखो मत, टाइम वेस्ट मत करो, आज समझ लो, कंसेप्ट को समझो। हम लोग अब यहाँ से मार्केटिंग में घुस रहे हैं, ठीक है। Then came the concept of marketing. The concept क्या कहता है? What does it say? It says that the concept of marketing emerged during 1950s as a customer-centered
as a customer centered, as a mobile operating, I'm sure. So the marketing concept emerged during 1950s as a customer centered. I'll explain, don't you? Customer centered sense and response philosophy. Sense and response philosophy. The marketing concept holds that the customer, the key to achieving its organizational goal, consists of companies being effective than the competitors. अभी competitors आ गया था ना, ना प्रोडक्ट कंसेप्ट में कंपटीटर आ गया है, तो जो ज्यादा प्रमोशन करेगा उसका ज्यादा बिकेगा, लेकिन अब जो ज्यादा प्रमोशन कर रहा है वो भी अब ज्यादा ग्रोथ नहीं दे पा रहा। कब क्या आया? मार्केटिंग कंसेप्ट आया। इट सेज दैट इट इज अ कंसेप्ट सेंटर्ड एट सेंस एंड रिस्पॉन्स। तो सेंस करो, उसको क्या चाहिए, उसको कन्वीनियंस चाहिए, है ना, उसको कन्वीनियंस चाहिए, उसको कंफर्ट चाहिए, उसको एंटरटेनमेंट चाहिए, टाइम सेविंग चाहिए। आ रहा है बात समझ में? आज जो क्विक कॉमर्स है टाइम सेविंग नीड को ही फुलफिल कर रहा है ना, टाइम सेविंग। यस और नो? वही प्रोडक्ट उसको अमेज़न पे मिल जाएगा, 3 दिन में आ जाएगा, लेकिन हम उतना पेशेंस नहीं है मेरे पास। इज इट नॉट ए गुड एग्जांपल ऑफ कन्वीनियंस, टाइम सेविंग? है ना, मेरे को घर बैठे बैठे चाहिए। अमेज़न ई कॉमर्स एवोल्यूशन ऐसे ही हुआ। ई कॉमर्स समझ आ रहा है? हमको भाई शॉपिंग तो करना है, बट एंटरटेनिंग होना चाहिए मेरा शॉपिंग। मतलब दुकान में जाए तो थोड़ा लगे कि वाओ कहां पहुंचे, अपना दुख दर्द गम भूल जाएं, शॉप म्यूजिक चलता रहे थोड़ा थोड़ा, है ना, लाइट वाइट एकदम। ये जो लाया सबसे पहले किशोर बियानी लाया, बिग बाजार कलकत्ता, पेंटालून 10,000 स्क्वायर फीट में पहला रिटेल स्टोर लाया।